ये जो टॉपिक है इसका नाम है चेंजिंग रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन इमर्जिंग इंडिया। तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि सिविल सोसाइटी एक चीज है, एक रोल ये प्ले कर रही थी, लेकिन बिकॉज ऑफ इमर्जिंग इंडिया में कुछ ऐसा बदलाव आया है जिसकी वजह से ये सिविल सोसाइटी का रोल जो है वो चेंज हो रहा है या चेंज होना चाहिए। न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, मतलब कौन? अजीत डोवल साहब, ही सेड दैट इफ सिविल सोसाइटी कैन बी सबवर्टेड, divided and manipulated, it will hurt the interest of the nation. In other words, civil society should not be subverted, civil society should not be divided, and civil society should not be manipulated. Otherwise, जिस चीज के लिए बनाए गए थे वो पर्पस डिफीट हो जाएगा और it will start hurting the interest of the nation. But obvious है, थोड़ा सा और न्यूज में देखते हैं. The National Security Advisor emphasized that the civil society in the new frontiers of war or the fourth generation of warfare. Civil society is the new frontier of war or the fourth generation of warfare, and it is the responsibility of the police to protect people from being subverted, divided and manipulated. मतलब क्या कह रही है? सिविल सोसाइटी जो है ये आज की तारीख में एक नया फ्रंटियर ऑफ वॉर शुरू कर रही है. इसको एक सिंपल तरीके से बताया जाए तो एक काइंड ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट हो जहां पे स्टेट लूज कर रहा है इट्स मोनोपोली ऑन वॉर, एंड इट इज द फाइटिंग ऑफ द नॉन स्टेट एक्टर्स सच एज टेरर ग्रुप्स एंड इंसर्जेंट्स. तो अगर ये फोर्थ जनरेशन ऑफ वॉरफेयर है तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ वॉरफेयर क्या था? जो कि हम लोग बैटलफील्ड में देखते हैं. बैटलफील्ड में दो आर्मी लड़ रही है. सेकंड जनरेशन ऑफ वॉर क्या होगा? ये था जब हम लोग आर्टिलरी फायर शुरू करें, आर्टिलरी फायर. थर्ड क्या होगा? जब सरप्राइज अटैक होने लगे, गुरिल्ला वॉरफेयर होने लगे, इन्फिल्ट्रेशन होने लगा. तो फोर्थ क्या है? फोर्थ ये है एट द सिविल सोसाइटी लेवल. ये लोग भी एक वॉर छेड़ दिए हैं. तो टेक्निकली बोला जाए तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है पुलिस की है टू प्रोटेक्ट पीपल, कि आप लोगों को कोई मिसगाइड ना करे सिविल सोसाइटी के नाम पे. सिविल सोसाइटी इज एक ऐसा डबल साइडेड स्वॉर्ड की तरह है, खराब भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है. In this regard, India needs an effective role of civil society in making the new India dream. All the initiatives of the government require the participation and awareness of the people, and there is no better organization than the civil society to achieve this objective. What is civil society? It is a society driven by the people themselves. It has its origin in the ancient times, although the understanding and meaning have changed over a period of time. Societies जो हैं या civil society जो है, it's a word taken from Roman Empire, या it's a Roman word. इसका actual नाम है Societas Civilis. Was the root word for the civil society. इसका मतलब सिनोनिम अगर इसका ढूंढे तो सिनोनिम ये है कि इट्स अ गुड सोसाइटी. जर्मन फिलोसोफर हैं जिनका नाम है हेगल, हैज कॉइन्ड द टर्म सिविल सोसाइटी. जिनका पॉल साइंस है इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें. नेक्स्ट, according to World Bank, civil society refers to the wide array of non-governmental and not-for-profit organizations that have a presence in the public life. ठीक है? A group that expresses the interests and the values of their members. ठीक है? Based on ethical, cultural and political, religious, philanthropic considerations. In a civil society, people voluntarily come together to achieve a desired objective of welfare of the society. For instance, Kutumbashri. Kutumbashri is a community organization of women in Kerala. Have been recognized as an effective strategy for the empowerment of women in the rural areas as well as in the urban areas. कोई इसमें डाउट होना नहीं चाहिए, इसमें तो कुछ है नहीं. इमर्जिंग इंडिया में इनका रोल बदल रहा है, यही समझने वाली बात है. अलग अलग एस्पेक्ट में बदल रहा है. नंबर वन, हम लोग बात करते हैं पहले गवर्नेंस की. The strength of the civil society can have positive influence on the state and the market. Therefore, it is seen as an increasingly important agent for promoting good governance, for promoting transparency, effectiveness, openness, responsiveness and accountability. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे पास है. जैसे अभी एक मूवमेंट चल रहा है, अगर आप लोगों को पता होगा, टीच इंडिया. ये फेसबुक पे हर दिन आ रहा है. क्या कह रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं कि इंडिया में टीचर्स की कमी हो रही है, टीचर्स चाहिए हमें. और टीचर्स क्या करेंगे? लॉकडाउन के एरा में ये टीचर्स पढ़ाएंगे. सरकार का काम कर रही है, सरकार को करना चाहिए एजुकेशन प्रोवाइड करना. सरकार नहीं करा पा रही है तो कौन करेगा? तो ये सिविल सोसाइटी के लोग करेंगे. सो इस तरीके से क्या हो रहा है कि सरकार का एक दाहिना हाथ बन गया है, एक एजेंट बन गया है व्हिच विल परफॉर्म द गवर्नमेंट ड्यूटीज. ठीक है? सिमिलरली एक ये लोग वॉच डॉग की तरह भी काम कर सकते हैं. अगर सरकार को बता दे कि सरकार आपके इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चोरी हो रही है, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में धांधलीबाजी हो रही है, से फॉर एग्जांपल दे डू द गवर्नमेंट मैकेनिज्म्स लाइक सोशल ऑडिटिंग, दे डू द मॉनिटरिंग आउटकम्स ऑफ प्रोग्राम्स. जो सरकार प्रोग्राम करती है उसमें क्या आउटकम हो रहा है, इससे क्या होता है वो लोग अकाउंटेबल कर देते हैं वो उन लोगों के साथ जो लोग इस जिम्मेदारी को लिए थे. Civil society also ensures the right to access to information. For example, मजदूर किसान शक्ति संगठन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकाला अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. सिमिलरली सोशल इफेक्ट क्या है? सिविल सोसाइटी हैज अ रोल ऑफ एनेबलिंग द वॉइसलेस एंड अनऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज इंटरेस्ट. वो उनके रिप्रेजेंटेटिव होकर बात करते हैं. इनका अल्टीमेट गोल क्या है? गोल ऑफ एम्पावरमेंट फॉर लोकल कम्युनिटीज. एनजीओ लाइक चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, एनजीओ लाइक वर्ल्ड विजन, आरंभ इंडिया, ये सारे एग्जाम्पल आप यूज करेंगे. ये सारे एग्जाम्पल किसके लिए है? रेजिंग अवेयरनेस ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज. नेक्स्ट, they have played a crucial role in inspiring and pushing through a number of reforms that have lastly changed in the Indian legislative landscape. For example, forest rights, right to education, employment guarantee act, ये सब इन्हीं के वजह, right to food, ये सब इनकी वजह से हो रहा है. Next, environmental movement in India is strong now, and this has led to cancellation of multiple projects in India after the civil society agitation. ये भी क्लियर है.
फॉर इंस्टेंसेस चिल्का लेक, कांदाहार फॉल प्रोजेक्ट, ऑलिव रिडली टॉर्टॉइज, कोस्टल बीच प्रोटेक्शन मूवमेंट, ये लोकल एक्टिविस्ट का पार्टिसिपेशन की वजह से हुआ है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है सिविल सोसाइटी का? Civil society has the monitoring function to hold the law and order machinery accountable, implying a control of political parties and electoral process, the control of local bodies, etc. NGOs like Association for Democratic Reform, इस एसोसिएशन का नाम मैं इसलिए अलग से ले रहा हूं, इसको तुम लोग जानते नहीं हो। मान लो कोई ना कोई आदमी है जो इस बार इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, उसके अगेंस्ट बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं और वो इस बात को बताया नहीं है किसी से, या इन अदर वर्ड्स मान लो कोई ऐसा नेता है जो खड़ा हो रहा है लेकिन उसने अपने इलेक्शन के जो एक्सपेंसेस हैं, कितना खर्चा किया है, वो नहीं बता रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन कहती है कि नॉमिनेशन फाइल करते वक्त आपको इसे बताना पड़ेगा, लेकिन नहीं बता रही है। तो ये सब चीजें जो छुपा कर रखी हुई है, मान लो कोई ऐसा फिगर बता रही है जो कि झूठ है, गलत फिगर है, तो ये क्या एनडीआर क्या करती है, मतलब एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये क्या करती है, ये सारे इंफॉर्मेशन को, ऐसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और इनका बहुत बड़ा थिंक टैंक, ये लोग डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स निकालते हैं। इससे प्रमाण हो जाता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो ये हमारे देश का आईना बन जाता है सिटीजन के लिए, जो लोग वोटर्स के लिए। तो इन्होंने बहुत सारी चीजें, इनकी वजह से बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट कराई गई है नए तरीके से इन द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इनफैक्ट ऑल द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वर बेस्ड ऑन देयर रिकमेंडेशन। इलेक्शन मैनेजमेंट रिफॉर्म्स, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जितने सारे अभी भी पेंडिंग है, वो सब इनके वजह से हुआ है। इनके मतलब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इनके अक्सर हिंदू में आर्टिकल आते रहते हैं। लेकिन तो अच्छी बात है, मतलब हम लोग इससे जान पा रहे हैं कि क्यों हमें सिविल सोसाइटी को और एम्पावर करना चाहिए, कैसे सिविल सोसाइटी ने आज तक हमें इंपैक्ट किया है, किन किन फील्ड पे किया है। लेकिन अभी सवाल यह है कि चैलेंजेस क्या क्या वो फेस कर रही है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी को हम चाहते हैं इसकी फुल पोटेंशियल में यूज करना, तो उसके सामने अड़ंगा कौन डाल रहा है, उनके सामने बाधा कौन सी है? नंबर 1 बाधा टेक्नोलॉजिकल बाधा। क्या है? मेजॉरिटी ऑफ इंडियन लैक डिजिटल लिटरेसी, आगे बताने की जरूरत ही नहीं है। लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी बैरियर, ये भी एक है। नेक्स्ट, economical, the dependency on the donation which is also tied to a specific project makes it difficult for many NGOs to have continuity and coherence in their actions. ठीक है? Next, social, they are the driving force in slowing down the agenda of liberalization and clearance of corporate groups. इससे क्या हो रहा है कि सोसाइटी में जब तक ये लोग हैं तब तक क्या कर रहे हैं, आज इधर आंदोलन कल उधर आंदोलन, इससे क्या हो रहा है, they have slowed down the liberalization process, a process which has begun in 1991 economic reforms, उसको स्लो डाउन कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कॉर्पोरेट क्लियरेंसेस को मिलने में दिक्कत हो रही है, तो यहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी अटके पड़े हैं जो अगर लागू हो जाते तो शायद बेनिफिट होता बहुत सारे लोगों का। और ये अधिकतर जो है ना, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हो रहा है। मोस्ट ऑफ देम जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, दे डोंट इवन नो द फंक्शनिंग ऑफ द सिविल सोसाइटी, दे डोंट इवन नो द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट्स, या उनके ग्रेविटी समझ ही नहीं पाते। नेक्स्ट, पॉलिटिकल, इन 2015 द सेंटर इंक्रीज्ड द ई फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स, एनजीओ हैड टू मेक क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ फॉरेन ग्रांट्स, एफसीआरए के अंडर में। एफसीआरए के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एफसीआरए क्या है? एफसीआरए में जहां से भी फॉरेनर्स को पैसा मिलता है, फॉरेन एनजीओ को पैसा मिलता है, फॉरेन करेंसी में पैसा मिलता है, हमारा इंडियन एनजीओ भी चल सकता है। किसी भी एनजीओ में जो इंडिया में काम कर रहा है, जिसको फॉरेन कंट्रीब्यूशंस मिल रहा है, दैट पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन शुड कम अंडर द रेगुलेशन ऑफ एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। उसके बाद सिक्योरिटी, आईबी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनकी कुछ इनपुट्स हैं जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि फॉरेन फंडिंग जो आती है इंडिया में, वे आर यूज्ड टू फंड एक्टिविटीज व्हिच विल डिस्टेबलाइज द नेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब कुछ ऐसे ही कारणों की वजह से पैसे भेजा जाता है जो कि गलत काम की वजह से करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, माओइस्ट को जो पैसा आता है डायरेक्ट इंसर्जेंसी से रिलेटेड है, तो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू स्टॉप। तो सिविल सोसाइटी क्यों कर रही है? इसलिए मैंने कहा ये दो मुखी तलवार की तरह है, अगर इसको ढंग से यूज कर लिया जाए तो ये अच्छा खासा काट सकती है, वरना अच्छा खासा नुकसान भी कर सकती है। ठीक है? वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड में ये लिखना है कि अकाउंटेबिलिटी सिविल सोसाइटी में ज्यादा नहीं है, उसको और ज्यादा करने की जरूरत है। ठीक है? तो सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्ट्स ऑन देयर ओमिशंस। ठीक? दूसरी, फंडिंग, मल्टीपल सोर्सेस से इनके पास फंडिंग आनी चाहिए जिससे ये लोग रिड्यूस कर सके अपना डिपेंडेंसी ऑन द रिच डोनर्स। इससे क्या होगा? दे विल नॉट बी बायस्ड। नेक्स्ट, हायरिंग द बेस्ट टैलेंट, दे शुड वर्क टुगेदर टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट, but those who get employment in these particular fields must first perform at least 3 years of voluntary services and just a living wage or stipend. उसके बाद देखा जाएगा कि इनको रखना है कि नहीं, मतलब कमिटेड लोग चाहते हैं। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल, collaboration with the government, funders and other civil society partners, it is vital to normalize the use of technology based interventions at this scale. मतलब हमें उनको टेक्नोलॉजिकली और डेवलप करना पड़ेगा। हम लोगों ने अभी भी देखा है कि विदाउट टेक्नोलॉजी कई लोग जो हैं सफर कर रहे हैं, कई एनजीओ जो हैं सफर कर रही है। तो ये चीज एक थी जिसमें अंदर सिविल सोसाइटी इन इंडिया या सिविल सोसाइटी या इमर्जिंग सिविल सोसाइटी के बारे में जान सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस टॉपिक।